Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the verses of Holy Quran. So in previous session, we discussed about the order of system, which are zero, first, and second order system. The basic overview of ordered system we discussed in our this link of website and detail we already shared with you guys. So coming towards the concept of zero order instrument, and zero order instrument is any instrument that it's a kind of revision. So this what is the lecture topic is it's a calibration. So we continue the session of calibration after understanding the basic know-how of system, which is the order from zero to second. So the first one is the zero order instrument. Any instrument that behaves according to the equation is set to the following to be of zero order. So zero order is basically the proportion of input entity with output, that is A naught with B naught, with the magnitude proportion of Q naught and Q1. That means X equal to Y. This simple phenomena of equation is we called zero order. The behavior of system is linear in zero order, most probably. Following are the step change in the measured quantity at time t, the instrument output moves immediately to a new value at the same time instant t. अब अगर हम इसको देखें तो ये दो चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट आउटपुट और मेजर्ड वेरिएबल। तो जो हमारी वैल्यू इनपुट के मुताबिक तब्दील हो रही है 0 to t टाइम्स के साथ साथ, तो मेजर्ड वैल्यू के हिसाब से भी वही चेंजेस ऑब्जर्व हो रही हैं। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन बोथ द ग्राफ दैट वी सीन इन above, and the value from t towards at some kind of level at instrument output, the measured value output can also be observed in this way. So this is the linearity can be we observe in both these graphs. A potentiometer which measures a motion is a good example of such an instrument where the output voltage changes instantaneously as a slider of the potentiometer. जिस तरह डिमर होता है हमारा ये फैन का, जिससे हम फैन की स्पीड कम या ज्यादा करते हैं, so it change instantaneously as a slider किसे कहते हैं, जिसे वो चेंज किया जा रहा होता है, that is the variable is displays along a potentiometer track. अब इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि हमारे जो घरों में आम पोटेंशियोमीटर लगा हुआ होता है उसमें लीनियर बिहेवियर किस तरह से है कि अगर मैं पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस के तौर पे उसे बढ़ाना शुरू करूं तो फैन की स्पीड हमारी कम होना शुरू होगी। ठीक, ये एक लीनियर बिहेवियर है कि मैं जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस या जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड कम करना चाहता हूँ उतना ज़्यादा मैं उसमें मूवमेंट बढ़ाऊंगा, तो मूवमेंट बढ़ाने के नतीजे में मेरी स्पीड कम होगी। तो एक लीनियर प्रोपोर्शन है कि एक वेरिएबल में जितना ज़्यादा प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ाऊंगा स्पीड उस हिसाब से ही कम होगी। तो ये बिहेवियर इंस्ट्रूमेंट का जीरो ऑर्डर के लिहाज से भी मैकेनिकल एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में हम जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के ऊपर, स्पेसिफिकली अगर वो मेटल के बने हुए हैं, तो दे आर एक्सपेंड, तो सॉलिड्स आर एक्सपेंड बाय प्रोवाइडिंग दी हीट ऑन दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो जितनी ज़्यादा हीट मैं प्रोवाइड करूंगा सॉलिड सब्सटेंसेस उतने ज़्यादा सब्सटेंशियली बढ़ेंगे। So coming towards the next category of system, which are the first order instrument, any instrument that behaves according to the following equation is known as the first order system. अब इसको अगर हम देखें तो इसमें एक एंटिटी है जो टाइम के वेरिएबल के तौर पे बढ़ रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एंटिटी विद अप्लाइड मैग्नीट्यूड इन टाइम्स ऑफ a1 and then plus a naught into q naught equal to b naught times of the q1. If the equation if the instrument follow this kind of behavior, then we can say this is the first order instrument.
फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर होता ये है कि हम एक एक्टिव और एक पैसिव इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। जो एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट अगर एक सर्किट के अंदर लगा हुआ हो तो उसे फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। बिल्कुल मैकेनिकल सिस्टम की तरीके से अगर एक डैम्पर लगा हुआ हो एक मैकेनिकल मोशन सिस्टम के अंदर, तो वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर रखता है। अनदर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल मूवमेंट के तौर पे वो ये है कि अगर एक स्प्रिंग बेस्ड मैकेनिज्म ब्रेकिंग के तौर पर या एनर्जी रिस्टोरिंग के तौर पर लगा हुआ है, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उसके ऊपर स्टोरेज एलिमेंट आप लगाएंगे उतने ऑर्डर उसके बढ़ेंगे। लेट से नंबर ऑफ स्प्रिंग अगर हमने लगाए हुए हैं, डैम्पर लगाए हैं सिस्टम के अंदर, अगर वो एक है तो वो इक्वेशन उसके मुताबिक जो बनेगी वेरिएबल ऑफ फर्स्ट वेरिएबल की, दैट वी कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। लाजिम बात है उसके साथ फाउंडेशन सपोर्टर्स ये सब भी लगे हुए होते हैं जो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं लीनियरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इस किस्म के सिस्टम्स को हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहते हैं। So rearranging the equation, that would be k times of b naught divided by a naught. This अब इसमें से हमने यहाँ पर इसको अरेंज किया है और उसके मुताबिक इसकी अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यू नॉट हमने अरेंज करा है और उसके मुताबिक जो ये फ्रैक्शन ऑफ रेशियो लिया है वो टी है। दैट टी इज वी कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड द रेशियो ऑफ दैट टी इज फ्रैक्शनल ऑफ a naught a1 डिवाइड बाय a naught। नाउ कमिंग टुवर्ड्स वो जो चीज हमने कॉमन यहाँ पे ली है, इसकी इक्वेशन बनेगी क्यू नॉट इक्वल टू के क्यू आई ओवर 1 + टाउ डी टाइम्स। सो ये इक्वेशन इसका सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के जरिए से हमें ये तीन पैरामीटर हासिल हो रहे हैं जिनके जरिए से हम इन कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इनके पैरामीटर्स को यूटिलाइज करेंगे। T is the time taken by the output to reach 63% of its input value। किसी भी सिस्टम जो कि स्टार्टिंग वैल्यू पे लेता है और अपनी ग्रेजुअली एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर, तो उसका जो टाइम कांस्टेंट एट इंस्टेंट ऑफ 1 कहलाता है वो 63% बनता है। ठीक। अब इसके मुताबिक अगर हम इसे देखें तो एक कैपेसिटर की नेचर को हम देखें तो कैपेसिटर को जब चार्ज किया जाता है तो वो ग्रेजुअली स्लो 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 चार्ज करता है और अपनी एनर्जी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर अपने एक इंस्टेंट के अंदर जो एनर्जी स्टोर कर लेता है दैट इंस्टेंट इज 63% ऑफ द टोटल ऑफ इट्स टाइम। और 100% कब चार्ज करता है कैपेसिटर? 100% अपने आप को चार्ज करता है 5 टाइम ऑफ द times. Capacitor energy store completely in the instant of 5 times of t. That time of the one instant is 63% of its input value. The liquid in glass thermometer is a good example. So coming towards the graph of this scenario, that this is the first order system जिसके अंदर हमारा एक रेजिस्टर लगा हुआ है एंड एज वेल एज एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक ये लो पास फिल्टर भी है, ये एक ट्यून सर्किट भी है और मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर को ये बताता भी है। अब इसके अंदर जो कैपेसिटर हमारे पास लगा हुआ है ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी को कुछ खास इंस्टेंट तक स्टोर कर लेता है और उसके बाद ये रीस्टोर करके वापस अपनी एनर्जी को ख़त्म कर लेता है अगर इसमें सप्लाई रिस्पेक्टिवली ऑन से ऑफ हो। और जब ऑफ से दोबारा ऑन होती है यानी कि सप्लाई जब आप दोबारा प्रोवाइड करेंगे कैपेसिटर को तो एनर्जी अपने अंदर ये स्टोर कर लेगा। बहरहाल इसकी जो आउटपुट इक्वेशन बनती है वी नॉट इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई 1 - एक्सपोनेंशियल -t डिवाइडेड बाई आर सी। ये एक्सप्रेशन होती है इसके आउटपुट वोल्टेज की जो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ही कहलाती है। अभी इसके लिहाज से अगर हम देखें तो वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता टाइम के रिस्पेक्टिव बढ़ रहा होता है। तो वो पहला इंस्टेंट टाइम के लिहाज से जिसके ऊपर ये कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है या चार्ज हो जाता है 63%, वो इसका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और ये बिहेवियर ग्रेजुअली लीनियरिटी की तरफ मूव कर रहा है और अपने सेट पॉइंट जो कि 100% ऑफ द कैपेसिटर की लिमिट कहलाती है वो उसको अटेन कितनी देर में करता है, वो उसका 5 टाइम्स ऑफ दैट टाइम कहलाता है। तो ये चार्जिंग टाइम 5 टाइम्स ऑफ टी के अंदर कंप्लीटली चार्ज कर लेता है और अगर इसको 1 टाइम ऑफ द इंस्टेंट में ले तो ये 63% कहलाता है। ठीक है, 1 इंस्टेंट के ऊपर 63%,
इस तरह 2 इंस्टेंट के ऊपर 70%, इस तरह 3 इंस्टेंट के ऊपर 85%, फिर 4th इंस्टेंट के ऊपर 95%, 92%, और इस तरह 5 टाइम्स ऑफ टाइम के ऊपर ये जाकर 100% कंप्लीटली इस इंस्टेंट के ऊपर ये ग्रेजुअली आगे जाके इसे मीट कर लेता है सेट पॉइंट पे, और 100% अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है। ये एक सिनेरियो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, फ्रॉम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द चार्जिंग। सेम इंस्टेंट जो बताया है मैंने यहाँ पर कि ये चार्ज करना शुरू करता है और 63% के इंस्टेंट के ऊपर आकर अपनी एनर्जी को 63% सेव कर लेता है। इसको टाइम कांस्टेंट और टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मेजर्ड वैल्यू की क्वांटिटी के मुताबिक 100% एक इंस्टेंट के ऊपर, जो कि 5 टाइम्स ऑफ दी टी कहलाता है, जैसे मैंने बताया 1 टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, 4 टाउ, और यहाँ पर इस इंस्टेंट के ऊपर आकर ये 5 टाउ कहलाता है, जिसमें कैपेसिटर अपने अंदर 100% एनर्जी स्टोर कर चुका होता है। ओके, दिस इज द concept of first order system in which energy one time of the quantity component can be connected. After that, we coming towards the concept of second order instrument that we already discussed in our previous session. So हम इसको आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। This is the standard equation of the second order system. Any of the instrument whose response can be described by its own as a second order instrument. अब इस इक्वेशन क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहा हो उस सिस्टम को सेकंड ऑर्डर सिस्टम कहते हैं। अब इस इक्वेशन में कोई खास चीज नहीं है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास एक सर्किट मौजूद है जो कि जिसके अंदर एनर्जी स्टोरेज दो कंपोनेंट मौजूद हो, तो उस सर्किट ऑफ द इक्विपमेंट सिस्टम को कहा जाता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम। मैकेनिकल एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल सिस्टम्स में अगर डैम्पर दो लगे हुए हों, स्प्रिंग दो लगे हुए हों, तो वो 2 टाइप्स ऑफ द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहलाता है। तो बिल्कुल इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर जो हमारे अगर दो कैपेसिटर लगे हों जैसे CRC, तो ये भी सेकेंड ऑर्डर एक फिनोमेना बन सकता है। लेकिन हम एक एक नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्लेवर देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर कैटेगरी क्या होती है कि हम उसमें R, L और C, एल भी एक इंडक्टर है जो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, और कैपेसिटर भी एक कंपोनेंट है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। तो दोनों जब ये एक्टिव कंपोनेंट्स हैं तो अपने अंदर एनर्जी, सॉरी पैसिव कंपोनेंट अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं, तो इन दोनों की वजह से इसे सेकंड ऑर्डर सिस्टम कहा जाता है। और रेजिस्टेंस जो है वो उसकी लीनियरिटी को मेंटेन करने के लिए एक एज अ मैग्नीट्यूड काम करता है और एज अ लिमिट ऑफ द करंट के तौर पे काम करता है, ठीक है, ताकि इस लीनियरिटी को मेंटेन रखा जा सके एक प्रोपोर्शनलिटी के साथ। बहरहाल अगर हम इसकी बात करें तो इस सिस्टम के अंदर जो हमारा क्यू है, क्यू इज द चार्ज ऑफ इन दिस सर्किट, और अगर ये चार्ज सेकंड टाइम ऑफ द सेकंड ऑर्डर के अंदर होता है, फिर ये सिंगल ऑर्डर के अंदर होता है, फिर सिंपल कांस्टेंट एंड देन इक्वल टू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल के मुताबिक होता है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर ये सेकंड ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री के ऊपर हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस सिस्टम को सेकंड ऑर्डर सिस्टम कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल मैंने ये भी बताई कि सिस्टम के अंदर अगर डबल स्टोरेज एलिमेंट्स लगे हुए हों, either they are the inductor capacitor or either they are the spring or dampers, then that is said to be the system of second order. Then ये इक्वेशन अरेंज करी है हमने Q के लिए, यहाँ से हम Q नॉट कॉमन निकालेंगे और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन के तौर पे इस तरह से लिख देंगे, D इज द D by dt। ये अरेंजमेंट ऐसा होने के बाद फिर यहाँ पर हम इनके जो फ्रैक्शनल हैं उनको अरेंज करके k टाइम्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ रेशो B नॉट A नॉट इज द k, omega is the angular frequency that a naught and a2, and zeta जो है इसे डैम्पिंग रेशो कहते हैं। प्रीवियस सेशन में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी क्लास के अंदर, जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन चल रहा था। तो जीटा के हवाले से मैंने बताया था कि ये डैम्पिंग कांस्टेंट है जो कि डैम्पिंग रेशियोज डिसाइड करता है, और उसके जरिए से कंट्रोलेबिलिटी हासिल होती है सिस्टम को कि हमें कितनी हद तक इसे कंट्रोल रखना है, किन किन पैरामीटर्स तक कंट्रोल हो सकता है और किन पैरामीटर्स के बाद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो 4 तरह की डैम्पिंग हमने पढ़ी थी, जो कि आगे एक स्लाइड बाद मजीद आने वाली भी है, तो उसके ऊपर इसकी बात करेंगे। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के जरिए से ये ओमेगा जो है इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहलाती है। सिस्टम जिसके ऊपर ट्यून होता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है, और वो पैरामीटर के जरिए से डिसाइड होता है, ड्राइव होता है। और के इट्स कांस्टेंट ऑफ
magnitude by which, that how much time the magnitude of a system is increase or decrease. It can also be said that it's a gain of system. ओके, आफ्टर दैट जब भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बनता है तो हमें याद रखें इसकी दो प्रोपोर्शनलिटी होती है। ये है इनपुट चार्ज और ये है आउटपुट चार्ज, यानी इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू। तो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है इसके जरिए से। तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, दैट इज द आउटपुट अपॉन इनपुट रेशियो। तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है हमारा जीरो और फर्स्ट के मुकाबले में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसके अंदर जो ट्यून करने की आज़ादी है वो जीरो और फर्स्ट के मुकाबले में ज़्यादा है। ये बेहतर तरीके से ट्यून हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इटसेल्फ इनके मुख्तलिफ इंस्टेंट्स के ऊपर डैम्पिंग और नेचुरल फ्रिक्वेंसीज के मुख्तलिफ तरह के इंस्टेंट्स होते हैं जिसके अंदर ये अपने आप को स्टेबल अनस्टेबल एक्ट करता है, करवाता है। फर्दर सिस्टम्स को अगर आप देखें तो ये सिस्टम स्टार्ट होता है ग्रेजुअली, इसके अंदर अनस्टेबिलिटी आती है, यानी अगर ये स्टार्ट होके बिल्कुल लीनियर लाइन पे चलने लग जाए तो सिस्टम लीनियर हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, बल्कि सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो ये कभी ऊपर जाता है रिस्पॉन्स, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ये लीनियरिटी की तरफ बढ़ तो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाता है, बाज़ दफ़ा 30 सेकंड भी लगता है, बाज़ दफ़ा 5 सेकंड भी लगता है। तो ये किस हद तक आप मिनिमाइज करते हुए सिस्टम को अप टू द मार्क लेके आते हैं, इट्स दैट क्राइटेरिया, पर्टिकुलरली कंट्रोलेबिलिटी बाय द डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये दो पैरामीटर के जरिए से, जो कि ये वाला है ओमेगा और जीटा, इसके जरिए से सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी, सिस्टम के सेट पॉइंट्स को आप यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, जिसके जरिए से सिस्टम आपका अप टू द मार्क होता है और उसके मुताबिक यहाँ पर ये चीज़ें फुलफिल होती हैं। यहाँ तक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमारा पूरा होता है। सेकेंड ऑर्डर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम अब बात करेंगे, जिनके बारे में। सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो हमारे होते हैं, के इज द स्टैटिक सेंसिटिविटी, ओमेगा इज द डैम्पिंग नेचुरल फ्रिक्वेंसी। के को मैंने गेन कहा था, तो ये गेन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ओमेगा इज द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो। जीटा के बारे में हमने डिस्कशन जो की थी वो जीटा इस तरह का था, यहाँ पे गालिबन ये इस तरह। तो मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीटा। यहाँ पे वो मिस था तो मैंने सोचा उसको एडअप कर दूं फर्दर। सो दिस इज जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो। द आउटपुट contains oscillations before coming to steady state. Accelerometer is a common example. तो दिस इज हम एक्सेलरोमीटर दे रहे होते हैं, इट्स अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल में ये चीज़ आती है। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है मुख्तलिफ तरह की वेरिएशन ऑफ डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रिक्वेंसी का। अब अगर आप देखें तो सिस्टम जो हमारा शुरू होता है जीरो से, टी टाइम ऑफ इंस्टेंट के ऊपर आकर वो लीनियर बिहेव कर सकता है, सिस्टम का ये आइडियल रिस्पॉन्स है। शुरू हुआ, टाइम ऑफ इंस्टेंट पे आके स्टेबल हुआ और फिर लीनियर बिहेव कर रहा है, स्टेबिलिटी विद लीनियरिटी। लेकिन होता है ये सिस्टम आइडियली ऐसे नहीं चलते। इसकी एग्जाम्पल को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अपने घर का फ्रिज रेफ्रिजरेटर ऑन किया, जैसे आप उसे ऑन करते हैं तो लाइट एकदम डिम हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और कुछ 3 सेकंड 5 सेकंड के बाद जाके लाइट ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती है। तो ये जो अनस्टेबिलिटी आती है सिस्टम में 5 सेकंड तक, 3 सेकंड तक, उस अनस्टेबिलिटी को जिस हद तक आप मिनिमाइज करते हैं सिस्टम उतनी ज़्यादा लीनियर और स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। इमेजिन करें कि आपने फ्रिज खोला और ये लाइट लेके बैठ गया आपका फ्रिज,
लंबे ड्यूरेशन तक, तो होगा क्या, उस पे अनस्टेबिलिटी के जो ये स्पाइक्स होंगे वो बहुत ज्यादा आएंगे और वो अनस्टेबिलिटी तौर पे एक्ट करेगा, फ्रिज खराब भी हो सकता है, जल भी सकता है। तो इस इंस्टेंट को किस हद तक आप अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं, इस इंस्टेंट को किस हद तक आप कम करते हैं, ये जो बिहेवियर है सेकेंड ऑर्डर के अंदर, इस चीज का नाम है फ्रॉम नॉन लीनियर टू लीनियर, फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। अब इंस्टेंट्स को अगर आप ये देखें तो सिस्टम मौजूद है हमारे पास, हमने उसे आउटपुट ए का जो कर्व अगर आप देखें, सिस्टम शुरू हुआ उसके अंदर ये ओवरशूट्स आए, फिर ये अंडरशूट्स आए, फिर ये ओवरशूट्स आए, ये अंडरशूट्स आए, ये ओवरशूट अंडरशूट के कॉम्बिनेशन के नतीजे में सिस्टम में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं तो ये अनस्टेबिलिटी कितने टाइम तक आगे जाएगी, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये अनस्टेबिलिटी तो इनफाइनाइट तक टाइम्स आगे जाएगी, कोई ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दैट्स अ रीजन कि जीटा की वैल्यू यहाँ पे 0.0 है, यानी जीटा आपने अप्लाई किया ही नहीं है। जीटा किसे कहते हैं, डैम्पिंग को, डैम्पिंग रेशियो। तो डैम्पिंग आपने यहाँ पर अप्लाई की ही नहीं है। जब वो सिस्टम जिसके अंदर डैम्पिंग आप अप्लाई कर दें जीरो, तो ऐसे सिस्टम को अनडैम कहते हैं, यानी डैम्पिंग उसमें नहीं हो रही। चार तरह की डैम्पिंग होती है, अनडैम, अंडर डैम, क्रिटिकल डैम, ओवर डैम, चार तरह की डैम्पिंग। इनमें सबसे पहली कौन सी है, अनडैम। सिस्टम में डैम्पिंग हो ही नहीं रही, तो आपने जीटा जब वैल्यू दी ही नहीं है तो सिस्टम अनस्टेबिलिटी ट्रांजिएंट में नॉन लीनियर के तौर पे एक्ट करेगा और वो स्टेबल होने का नाम ही नहीं लेगा। और उस वक्त जो ये जीटा है ये आपका जीरो हुआ हुआ होगा मैग्नीट्यूड के लिहाज से। आफ्टर दैट आउटपुट बी के ऊपर अगर आप देखें तो आपने जीटा की वैल्यू 0.2 दी हुई है। तो अगर जीटा की वैल्यू जीरो से बढ़ के, जीरो पॉइंट वन से लेके 0.9 के दरमियान अगर एग्जिस्ट करती है, यानी ये वन तक, आई मीन इनके दरमियान 0.2, 0.3, 0.5, 0.557, 0.5558, 0.6912, ये 0.1 से लेके 0.9 के दरमियान जो जीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इस रेंज ऑफ वैल्यू को कहा जाता है अंडर डैम। अब अगर आप देखें जीटा इक्वल टू 0.2 जो कि बी के ऊपर है, तो बी इंस्टेंट के ऊपर आप देखें ए के मुकाबले में बी में ओवरशूट कम है, अंडरशूट और कम है, ओवरशूट और कम है, अंडरशूट और कम हुआ, और एक टाइम पे जाके आप कहेंगे कि ये स्टेबल हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अब देखें 0.2 के मुकाबले में सी इंस्टेंट ऑफ डैम्पिंग के अंदर 0.707 हमने दिया है। तो सी के अंदर अगर आप देखें तो ये कर्व सी का है, तो ये लीनियरिटी के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो ये बहुत जल्दी यहाँ पे आके लीनियर तकरीबन तकरीबन हो गया है। तो ये भी अंडर डैम की एग्जांपल है। अगर हम डी की बात करें तो डी के ऊपर आपके डैम्पिंग की वैल्यू वन है, तो वो वैल्यू जो डैम्पिंग आपने वन अप्लाई करी हो, सिस्टम स्टेबल हो गया उस पे आके, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्रिटिकल डैम्प। क्रिटिकली वैल्यू आपने वन दी और डैम्प हो गया, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्रिटिकल डैम्प। ई इंस्टेंट, अब वो वैल्यू जो कि वन से ग्रेटर हो जाती है आपकी, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं ओवर डैम्प। ठीक है, पहले हमने पढ़ा जीरो के इंस्टेंट पे क्या कहते हैं उसे, अनडैम्प। 0.1 से लेके 0.9 तक वैल्यू कौन सी होती है, अंडर डैम्प। दो कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी कौन सी है, अगर वन के ऊपर सिस्टम क्रिटिकली डैम्प हो जाए तो इस सिस्टम को कहते हैं क्रिटिकल डैम्प, क्योंकि क्रिटिक एक स्पेसिफिक वैल्यू है। तीन के बाद जो चौथा स्टेट होता है वो होता है वन से ग्रेटर। तो अगर वैल्यू ऑफ जीटा ग्रेटर देन टू वन हो तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं ओवर डैम्प, यानी ई का इंस्टेंट। तो आपने डैम्पिंग इतनी खतरनाक लेवल की दी हुई है वो सिस्टम में भी दोबारा से ट्रांजिएंट या अनस्टेबिलिटी सिस्टम में आ जाएगी, क्योंकि इसका ओवरशूट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके अंदर ये जो कर्व आप देख रहे हैं, इससे इसका सेटलिंग टाइम यानी सेटलमेंट होने का टाइम बहुत बढ़ सकता है। तो ये आपने डैम्पिंग इतनी ओवर कर दी है, इसलिए इसको ओवर डैम कहते हैं, जिसके नतीजे में सिस्टम में सेटलिंग टाइम बढ़ गया, सेटलमेंट होने में उसे टाइम लग रहा है। अब अगर आप इसे देखें तो हमने ये जीटा की ट्यूनिंग करते हुए सिस्टम को चार तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया और उसको ट्यून करके स्टेबिलिटी की तरफ लेके आ रहे हैं अनस्टेबिलिटी से। तो ये खूबसूरती है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, जिसमें सिस्टम कॉम्प्लेक्स तो होता है, एक्सपेंसिव होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, लेकिन सिस्टम आपके पैरामीटर के मुताबिक कंट्रोलेबल हो जाता है। दैट्स अ रीजन वी मोर प्रेफर a second order system because it's a tunable and as per desired you can find the kind of this system. So we more prefer a second order system instead of first order or zero order. यहाँ तक हमारा ये जो सिस्टम्स ऑफ सिस्टम है
यहाँ तक ये मुकम्मल होता है। कैलिब्रेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो कैलिब्रेशन के हवाले से जो चीज़ें रह गई थी उसको हम बात करेंगे। तो कैलिब्रेशन सिस्टम को करना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट कैलिब्रेशन हमारा सिस्टम एज पर द रिक्वायर्ड यूज़र आउटपुट रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करता। इंस्ट्रूमेंट ओनली कन्फर्म्स टू स्टैटिक एंड डायनेमिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर आफ्टर इट हैज़ बीन कैलिब्रेट। सो स्टैटिक हो या डायनेमिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो, दोनों में इट हैज़ टू बी कैलिब्रेटेड। New instrument normally behaves according to the stated characteristics in the specification sheets. So जो भी आप न्यू इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसके साथ उसकी एक डेटा शीट्स आती है, अप टू द मार्क एक स्टैंडर्ड की कैटलॉग्स आती हैं। उसके मुताबिक आप किन सेट पॉइंट्स ऑफ यूजर डिफाइन को लाने के लिए किन किन सेट पैरामीटर्स को कितना मूव करना है, कितना उन्हें वेरी करना है, जिसके ज़रिए से ये आउटपुट आप एज पर द यूजर डिफाइन हासिल कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की कैटलॉग्स लॉग बुक्स में लिखी हुई होती हैं। इसी के साथ साथ ओल्ड इंस्ट्रूमेंट डाइवर्ज फ्रॉम स्टेटेड स्पेसिफिकेशन फॉर द रीजन सच एज मैकेनिकल वेयर इफेक्ट्स एंड डर्ट। जो हमारे बहुत सारे पुरानी मोटर्स होती हैं, पुराने पावर पंच होते हैं, पावर कंप्रेसर्स होते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम्स ये आती है कि वो पुराने पुराने जो मशीनें रखी हुई होती हैं, तो उनके एज पर द यूजर डिफाइन सिस्टम रिस्पॉन्सेज आ नहीं रहे होते। तो हम उन्हें लाने के लिए उनकी मुख्तलिफ तरह की उसमें पैकिंग्स लगाते हैं, मुख्तलिफ तरह की डाइवर्जेंस करते हैं, मुख्तलिफ तरह के उनमें सेट पॉइंट्स एडजस्ट करते हैं, जिसके ज़रिए से इन कैलिब्रेशन टेक्निक के नतीजे में हमें एज पर द यूज़र नीड, यूज़र रिक्वायरमेंट, हमें रिस्पॉन्स आउटपुट मिल रहा होता है, रीडिंग मिल रही होती है। तो कैलिब्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द न्यू एज वेल एज द ओल्ड इक्विपमेंट ऑफ द which we use as equipment, as an instrument in our devices. Effects on the dirt, dust, fumes and the chemicals in operating environments, ये सारे वो effects हैं जिसके नतीजे में आपका आउटपुट सही तरह से इंस्ट्रूमेंट जनरेट नहीं कर रहा होता, और इन सब इनॉर्मिटीज के नतीजे में आप प्रॉपर क्लीनिंग ना होने की वजह से डस्ट पार्टिकल इन लाइन उसके होने में नतीजे में फ्यूम्स, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फ्यूम्स, इन सब का इम्पैक्ट सिस्टम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जब आता है, तो इसके नतीजे में आपका इक्विपमेंट सही रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। तो उसमें एक अलग लेवल की कैलिब्रेशन करनी होती है, एरर को मिनिमाइज करने के लिए कैलिब्रेशन करनी होती है, ताकि एज पर द यूजर नीड, एज पर द यूजर डिफाइंड वैल्यू, वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल टुडेज lecture regarding calibration, regarding the system of order 0, second and first order. Hope you understand the kind of concept. If you have any kind of question, query or difficulty, you can feel free to ask. I will answer the kind of question and resolve your queries. So up till now, Allah Hafiz.